دوسرا نیب کے قانون میں ایک مرتبہ پھر تبدیلی کی گئی ہے اور وہ تبدیلی بھی دوبارہ ایک آرڈیننس کے ذریعے کی گئی ہے اور صدر مملکت نے دوبارہ اس کی منظوری دی ہے اور اس تبدیلی کے مطابق کچھ لوگ جو ایسا لگتا تھا بچ گئے ہیں نیب سے یا ان کے کیسز نکل گئے ہیں نیب کے دائرہ اختیار سے، وہ واپس انہی کے اختیار میں آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب کے وکیل نے باقاعدہ عدالت کو کہا تھا کہ نیب آرڈیننس جو نیا آیا ہے اس کے مطابق اب زرداری صاحب پہ یہ کیس نہیں بنتا، لہٰذا انہیں باعزت بری کیا جائے۔ یہ انہوں نے درخواست بھی دے دی تھی، گو کہ وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل پائے گا اور دوبارہ سے ان کے کیسز جو ہے وہ نیب اسی طرح جیسے ماضی میں دیکھ رہا تھا ویسے ہی دیکھے گا۔ کیونکہ دوسرا ٹاپک ہے مجھے وہ شروع کرنا پیپلز پارٹی سے اس لیے کروں گا کہ پیپلز پارٹی کا اس پہ اعتراض بھی تھا اور ان کے صدر مملکت جو سابق آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کے وکیل نے اس پہ ریلیف بھی مانگا تھا آرڈیننس پہ، لیکن اب آرڈیننس کو دوبارہ تبدیل کیا گیا ہے اور 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں نیب قوانین میں ترامیم کا نیا آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ جی اخونزادہ چٹان صاحب۔ دیکھیں جی، مجھے تو اسی حکومت پہ افسوس آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کا حکومت ہے۔ یہ ایک آرڈیننس بھی صحیح طریقے سے نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ تیسرا آرڈیننس ہے جو لا رہی ہیں، کبھی ایک لا رہی ہے کبھی دوسرا لا رہی ہے۔ یہ آرمی چیف کا نوٹیفیکیشن میں کیا تماشا لگایا تھا۔ یہ نالائق اور نااہل ٹولے کا ایک جمگٹا ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ ملک کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہمیں اس کے آرڈیننس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم آرڈیننس لا کے اور اپنے خود کو انارو دے کے اور ہم چھوٹ جائیں گے تو یہ چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے اپنے آپ کو انارو دے سکتے ہیں تو آنے والا حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ کا یہ آرڈیننس ختم بھی کر سکتے اور آپ کو دوبارہ گرفتار بھی کر سکتے۔ ایک منٹ یہ آپ بات اپنی مکمل کریں، لیکن ایک بریک لینے کا کہہ رہے ہیں۔ بریک کے بعد آپ ہی سے شروع کروں گا، آپ یہیں سے بات مکمل کیجئے گا میرے سوال کے ساتھ۔ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اخونزادہ چٹان صاحب، ہم تو پچھلے والے جو آرڈیننس ہے اس کو بھی این آر او کہہ رہے تھے اور بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، ان کو ریلیف مل جائے گا، لیکن اب یہ لوگ جو ہیں ان کے کیسز ویسے ہی دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو فرق یہ پڑا ہے جو کچھ بھی تبدیل کیا گیا اس میں ایک تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار چلا گیا کہ چیئرمین نیب کو سپریم کورٹ کے جج کی طرز پر عہدے سے ہٹانے کے اختیارات صدر کے پاس چلے گئے ہیں اور آرڈیننس کی دفعہ 6 میں کی گئی ترمیم کے تحت چیئرمین نیب 4 سال تک صدر کی متعینہ شرائط پر اپنے عہدے پر فرائض سر انجام دے سکیں گے۔ یعنی اب یہ تبدیلی تو آئی ہے۔ پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ سب کا یہ این آر او ہو گیا، لیکن اب کم سے کم آپ لوگوں کا تو احتساب ہوگا جو لوگ اس کے نیٹ میں آئے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم اس کے احتساب سے اور انتقام سے ڈرتے نہیں ہیں۔ احتساب تو ہمارا صدر اسحاق صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا۔ پورا ریاستی مشندری نے زور لگایا تھا کہ ہم پہ کوئی کرپشن کا کیس ثابت کرے۔ پھر ہمارے سیف الرحمان کے دور میں بھی زور لگا کہ پورا مشندری، جتنا ریاستی مشندری تھا، زور لگایا کہ زرداری صاحب پہ کوئی جرم ثابت کرے۔ پھر چودھری نثار صاحب کے دور میں یہ ہوا، مشرف کے دور میں یہ سارا، یہ ہمارا پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے۔ ہم نہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں نہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ ہم پہلے بھی اپنے کیسوں الزامات کے خلاف کیسوں میں پیش ہوئی ہیں، اب بھی پیش ہو رہے ہیں، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرخرو کیا تھا اور اب بھی ہم کو سرخرو کریں گے۔ اور ہمارا جو احتساب کے لیے مطالبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ ریلیف کا نہیں ہے۔ ہم نے ایک بار بھی زندگی میں، نہ ہمارے کسی لیڈر نے نہ ہمارے کسی سپوکس مین نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم پہ جو کیسز ہے یہ کیوں ہے، یا ہم پہ الزامات نہیں لگائے، یا الزامات کی بنیاد پہ ہم پہ کیسز نہیں چلائے۔ ہمارا ہمیشہ سے احتساب کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، جرنلسٹ کا بھی ہونا چاہیے، بیوروکریٹس کا بھی ہونا چاہیے، بزنس مین کا بھی ہونا چاہیے، اور سب کے لیے طریقہ کار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ اپوزیشن کا ہے تو اس کے الزام کی بنیاد پہ 90 دن تک آپ اس کو ریمانڈ پہ رکھ کے 2 سال اس کو آپ جیلوں میں رکھے اور 2 سال بعد
उसको जमानत मिली। हम कहते हैं कि जो तरीका पोजीशन के लिए हो वो सरकार के लिए भी हो, जो आम आदमी के लिए हो वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी हो। तो इस चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये इन चीजों से सिर्फ मीडिया का रुख किसी और तरफ डाइवर्ट करना कि लोगों के महंगाई से, लोगों के गुर्बत के से, लोगों के बेरोजगारी से इसकी नजर हट जाए और किसी और टॉपिक पे चला जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। ये जितना जोर लगा, अच्छा चलें, आप इसको वेटेज ही नहीं दे रहे, आप इसको वेट ही नहीं दे रहे। देखिए हमने इनके और मैं आपको ये बात बताऊं कि ऑर्डिनेंस कोई कानून नहीं है, इसका एक लिमिट टाइम है और लिमिट टाइम में खुद ब खुद लिमिट टाइम में ये खुद ब खुद जो है वो खत्म हो जाता है। तो इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ शमीम नकवी साहब से कि शमीम नकवी साहब, आप लोग कब तक सन हुकूमत और पुरानी हुकूमत याद कर करके, आप लोगों की 3 साल हो गई। 3 साल में आप लोग मुझे बताया आप लोगों ने क्या किया। केपीके में आप लोगों का 8 साल का हुकूमत हुआ, बस सिवाय वो एक प्रोजेक्ट का जो पहले इमरान खान उसको जंगला बस कहता था, इसका शदीद मुखालफत करता था और फिर वहां पे शुरू कर दिया। और जितने पैसों से इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर का मेट्रो बने हैं, इनसे दुगना खर्चा इस पे आ गया। अभी भी सर्दियों में लोग धक्के दे के उसको स्टार्ट करते हैं और गर्मियों में जलते हैं। आप मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बताए। सन में तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि सफाई में बहुत शानदार काम। हाँ, कराची का आप कह रही हैं, ये लोग संत की बात नहीं कर रहे कि संत सूबे में कुछ नहीं हुआ है। कराची की आप बात करते हैं। एक सेकंड की बात कर रहा हूं। अच्छा, जिस तरह मैं आपको तवज्जो से सुन रहा था, देखो सुन लें जरा, सुन लें। अच्छा चले, आप बात मुकम्मल कर लें, ठीक है। कराची की बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों के 13 MNAs हैं, 24 आप लोगों के MPAs हैं। मुझे बताएं कि वो जो ऐलानात किए थे, खुद ये हाइब्रिड हुकूमत के सेलेक्टेड वजीर आजम ने जो ऐलानात किए थे, इसका क्या हुआ? आप लोगों ने कराची को क्या दिया? कराची ने आप लोगों को इतना। सर एक सेकंड अपोजिशन के पंजाब में 100 से ज्यादा MPAs हैं, अपोजिशन के वफाक में बहुत सारे MNAs हैं। आपने पाकिस्तान को क्या दिया? सर जब कोई अपोजिशन में होता है तो वो नहीं दे पाता। हमारे साथ तो मरकज में हुकूमत नहीं है, इसके पास तो फेडरल गवर्नमेंट है। हमारे पास इख्तियारात तो सूबाई हुकूमत के पास हैं। हम क्या पुख्तनख्वा को हम क्या दे सकते हैं? हम पंजाब को क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इसके पास तो फेडरल गवर्नमेंट है। सर लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो आप कहते थे 18वीं तरमीम के बाद सारे इख्तियारात पंजाब के पास है, बतौर सूबे के। पंजाब का शहबाज शरीफ जाने और उसका काम जाने। मैं आपको एक दरख्वास्त करता हूँ खान साहब, जिस तरह आपने शमीम नकवी साहब को सुना, भाई सुन ही रहा हूँ आपको इतनी देर से। अगर आप टाइम नोट करेंगे ना, आप अगर टाइम नोट करेंगे, अखुंदा चट्टान साहब एक मिनट, अगर आप टाइम नोट करेंगे ना, नहीं आपका, अगर आप नोट करेंगे तो आपको ज्यादा मौका दिया, अनइंटरप्टेड मौका दिया, बाकियों को भी चुप करवाया। अभी आगे भी मौका आपका ही है, आप ही बात करेंगे मेरा भाई, आप ही बात करेंगे, आप ही बात करेंगे। लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा ना भाई, सवाल तो मैं पूछूंगा। अगर आप चाहते हैं सवाल ना पूछें, आप बोलते जाएं, कोई बात नहीं, मैं चुप कर जाता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सवाल बिल्कुल बेशक पूछिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जब तक नहीं दूं, आप बोले बात मुकम्मल कर ले, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बात मुकम्मल कर ले, बात मुकम्मल कर। मैं अपने भाई से ये कह रहा हूं कि 3 साल आप लोगों के हो गए। आप लोग इस वादे के साथ आए थे कि आप लोग जो है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, कर्जे नहीं लेंगे, 17 लोगों से ज्यादा काबीना नहीं रखेंगे। आप लोगों ने मुल्क का क्या हशर किया भाई? अब जादू टोने से और इस्तिखारों से और सितारों के चाल चलन से आप मुल्क को चलाएंगे तो इस मुल्क का यही हाल होगा। अगर मुल्क जादू से मजबूत होता तो बांग्लादेश आप अमेरिका नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क से तो वहां पे जादू बहुत ज्यादा मजबूत है। आप लोगों का हुकूमत कोई प्लानिंग से नहीं चल रहा है, ये इस्तिखारों से चल रहा है, ये सितारों के चार से आप लोग चला रहे हैं, ये जादू टोने से चला रही है। रियासतें जादू टोनों से, इस्तिखारों से और सितारों के चारों से नहीं चलती है। चले मैं जरा एक सवाल जरा मैं निहाल हाशमी साहब से कर दूं, फिर मैं गवर्नमेंट को ले जाऊंगा इसी सवाल को गवर्नमेंट के पास। निहाल हाशमी साहब आप ये बताएं कि ये तो बड़ी दलेरी है कि आप पिछले ऑर्डिनेंस के ऊपर इस वक्त एहतजाज का प्लान कर रहे थे कि ये नैब का ऑर्डिनेंस कैसे आ गया, ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है, और एक NRO है जो सबको मिल गया है। अभी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाए या आपने एहतजाज शुरू ही नहीं किया तो वो नया ऑर्डिनेंस आ गया है। सर ये तो बड़ी बहादुरी के साथ ऑर्डिनेंस आ रहे हैं।
देखिए इमरान, ये हर चीज बड़ी बहादुरी से करते हैं और हर चीज अपनी ऑर्डिनेंस पे यू टर्न ले लेते हैं। ये महा एनआरओ है, जोक ऑफ द डे है। जो वकील हैं, जो लॉ जानते हैं, वो जानते हैं कि इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। कानून के साथ खिलवाड़ इसको कहते हैं कि आप पार्लियामेंट पे लेके नहीं जाते हैं, आप अपोजिशन से मशवरा करते नहीं है, आप रूल ऑफ बिजनेस पे जाते नहीं है, आपको एक ऑर्डिनेंस मिल गया। और मैं फिरदौस भाई से एक बात कहूंगा, उनके लिए कल जितना एहतराम था आज भी उतना एहतराम है और हमेशा रहेगा, मगर उनकी पार्टी से, उनकी गवर्नमेंट से एक उसूली इख्तलाफ है। मैं फिरदौस भाई की इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने कई बार मैंने सुना है कि वो आम लोगों के लिए गैस के लिए एहतजाज करते रहे हैं सुई गैस के सामने। तो आपकी दिल आज़ारी के कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ फिरदौस भाई, आप ज़ाती तौर पे मैं आपको जानता हूँ, आप एक अच्छे आदमी हैं। अब रह गया जहाँ तक इनकी हुकूमत की कारकर्दगी, तो उसको ऑर्डिनेंस सर, ऑर्डिनेंस पे रुके, ऑर्डिनेंस पे रुके सर, बना दिया ये अब आप इस ऑर्डिनेंस को कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं इससे? ये एक मजाक है, खिलवाड़ है, जोक ऑफ द डे है। आपकी पिछला भी ऑर्डिनेंस जो था वो एक मजाक था, जोक था, लोग हमारा मजाक उड़ाते। आज मैं बार रूम में बैठा हुआ था, हमारे एक दोस्त है ख्वाजा शम्स एडवोकेट है, वो कहने लगे कि पिछला ऑर्डिनेंस भी जरा उठा के देखो जी, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है, लॉ मिनिस्टर, इस तरह से ऑर्डिनेंस आता है भाई। मैंने फिरदौस भाई देखें, आप अपने लोगों को जरा सा अकल दें, उनको समझाएं कि कोई तरीकेकार होता है। स्टैंडिंग कमेटी, आप खुद स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं, मैं खुद लॉ की स्टैंडिंग कमेटी में था, मुझे पता है कि किस तरह से एक प्रोसेस होता है। और इवन ऑर्डिनेंस अगर लाया जाता है, कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, खुदा ना खास्ता कोई मुल्क में इमरजेंसी हो गया, तो फिर किसी चीज को संभाला देने के लिए लाया जाता है। मगर आप एक मजाक कर रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट के हाथ में आप दे देते हैं कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशल कमीशन पे एतबार नहीं रहा कि जिस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट और जिस तरह से उनकी बर्खास्तगी का तरीक़ेकार था चेयरमैन नैपको, इसमें हम समझने में हक बजानिब होंगे समझने में कि जनाब आप जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं उनके साथ आपका कोई लीक है, आपके कोई भानुमति का कुंभा है, आप टोपी ड्रामा करें। हम कल भी नहीं डर रहे थे आपके एहतसाब से, बड़े दिलेरी से मरियम से लेकर के शहबाज शरीफ साहब से लेकर के ख्वाजा साहब, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, हम सब बड़े जुर्रत से हम कह रहे हैं कि जी आप जो एहतसाब करना करें, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते।